हमें बड़ी खुशी है कि आप सबों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए कि आज जिनको हम सुनेंगे उनका जो शोध कार्य है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा प्रबल होता है और सारी चीजों को इकट्ठा करके, समझ करके जिस रूप में वो रखते हैं हर्ष जी, वो हम सबों के लिए न सिर्फ मन को हर्षित करने वाला है, बल्कि वर्ष प्रतिवर्ष, दिन प्रतिदिन हमारे ज्ञान और हमारे आचरण में भी अपेक्षित परिवर्तन और जानकारी के जो स्रोत हैं, उसके लिए उनको बहुत आशीर्वाद और नमन है। क्योंकि विषय इतना गहरा है और अन्य मित्र भी साथ में हैं, तो बिना अधिक समय लिए हुए हर्ष जी से आग्रह होगा कि वो अपने इस व्याख्यान को, आख्यान को और उनके जो सधे और डाटा पर, सच्चाई पर आधारित जो बातचीत जो वो प्रस्तुत करते हैं, वो हम सबों को बहुत इससे लाभ होगा, समझदारी हमारी बढ़ेगी। एंड whenever we listen to young people, there are very many advantages that we not merely know the subject matter which our youth are contemplating and thinking, but it's a good for us also because they are the hope-giving people. If the present is in the right hand, the nation is in the right hand, and they have got the enough wisdom, acumen, both tacit and explicit, to understand the thing. So, without going much into the detail, it's always a burning topic. Uh, Now over to अमिताभ जी। अमिताभ जी, अब आपके पास कि जैसे आप इसको परिचालन करना चाहते हैं, कृपया वो करें और हम लोगों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो प्राप्त होने वाला है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर. And Saikat Basu from Canada, he is a director in one organization in Canada. He has also come. He is our guest, special guest. Saikat Basu, you want to say something? Basu sahab? Yes, yes. Thank you so much. I'm having a हाँ. little internet disruption today, so sorry for the interruption. But on behalf of the organizers, I warmly welcome the speaker Harshavardhan ji हाँ for, जी. and we are welcome him for his erudite presentation that I think will benefit us all. Yeah. China is now, as I feel, is a global threat, a global security threat for every country around the world. They are infiltrating into the systems of the other country, a country which was not recognized a few years down the centuries back, is now has turned, an ancient civilization has turned into a nuisance for the rest of the world, because, and particularly for India, it's one of the greatest security threats that India has witnessed since post-independence. Every time we are focused towards Pakistan, I think India's greatest enemy now and a competitor is China. But as I sincerely believe that as you cannot change your neighbor, we need to transform ourselves and need to understand China better for not only improving our diplomatic relationship, but also to increase our strategic deterrence so that we can reduce and bring the threat from China under control. So, with these words, I greatly appreciate author Harshavardhan ji for agreeing to speak on such a sensitive and a very important topic from Indian perspective. So, we look forward to listen to his erudite presentation. And thank you very much. I am honored to be one of the speakers. As the guest for this organization for tonight's presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Within few words, you have expressed everything. You have narrated so many things, no? And let us now hear Harsh. Both people, no? Basuji and this Harshji, both are young people, and both are dynamic, and both are scholars. We are lucky to get such a great scholars in our group. So Harsh साहब, आप शुरू करें.
हर्ष साहब। A very good evening, respected members. मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं अच्छे से? हाँ सुन रहे हैं, लेकिन कुछ स्लो आ रही है आवाज। अब सर? थोड़ा सा स्लो आ रही है। माइक को अपने मुंह के पास रखिए हर्ष जी। अब आ रही है सर? माइक को अपने मुंह से सटा के रखिए। Am I audible, sir? Yes, this time you are audible. Yes. Thank you. Okay, thank you, sir. So let me share the screen for all of us. Are the slides visible? Yes. So I will use both Hindi and English language for this Yeah. talk. So let's get started. सबसे पहली बात हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे करेंगे। कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो वो अपने वर्क फोर्स को यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को जब तक कंट्रोल में ना ले तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। Similar situation was faced by China. In 1990s, we were literally equal to China. Today, we are a 3 trillion economy. To be precise, we are 2.9 trillion economy. But today, China has an economy of $14.5 trillion, which is a whopping number. And this country is second to USA, having $20 trillion of the GDP. देखिए, चीजें काफी सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि चीज कैसे आगे बढ़ी, क्या कारण था कि चाइना ही आगे बढ़ पाया, हम लोग नहीं बढ़ पाए। क्योंकि चाइना के पास न नेचुरल रिसोर्सेज थे, ना उसके पास मिनरल्स थे, ना कुछ भी नहीं था उसके पास। So let's get into the background of the story. In 1976, the Premier Mao Zedong came into power. His policy was of the Great Leap. देखिए, ग्रेट लीप से मतलब यहाँ पे बहुत ही रेवोल्यूशनाइज कंटेंट नहीं है। ग्रेट लीप कहने का मतलब है कि जो भी लोग उनका पार्टिसिपेशन करा जाए वर्कफोर्स में, बट इट वाज ब्रूटल एंड इट वाज विद फोर्स, so it was not sustainable for a longer period of time. Agriculture wise, there were many famines and there were deaths of lakhs of people. और सबसे अजीब बात यह है कि चाइना आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम लोग बस सुपरफिशियली ऊपर ही जानते हैं, जैसे कि हमें मीडिया से खबर मिले या कहीं और से खबर मिले इन सारी बातों की। Now, what are the sources that they took? सबसे पहले तो बैकयार्ड फर्नेसेस का कॉन्सेप्ट आया। बैकयार्ड फर्नेसेस वो होता है कि आप अपने बैकयार्ड में कुछ स्टील प्लांट करें ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ सके और रेवेलियन आगे ना बढ़ सके क्योंकि लोगों को काम मिल पाया। और हुआ जस्ट उसका विपरीत। In the year 1966, Cultural Revolution took place, and in 1976, Deng Xiaoping came into power. He was a visionary, and in 1978, he was backed by 95 crores of workforce. आप इमेजिन करिए कि कोई भी कंट्री जिसके पास 95 करोड़ का वर्कफोर्स हो, जिसका एक कम यूनिट एरिया हो, उसके पास कितनी ज्यादा ताकत होगी। जैसे हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में भी देखते हैं, लोग पाकिस्तान को चैलेंज करते रहते हैं या पाकिस्तान हमें चैलेंज करते रहता है। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक दैट इट इज रेलेवेंट, क्योंकि हमारी आबादी और उनकी आबादी को देखिए, उनके रिसोर्सेज और हमारे रिसोर्सेज को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डिड डेंग जाओपिंग डू?
फर्स्ट वाज द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। डेंग जाओपिंग के साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि चाइना में एक वर्क फोर्स तो है पर वो स्किल्ड नहीं। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने 1980s में करा और हम कहीं ना कहीं फेल हो गए क्योंकि हमने सोशलिज्म का मॉडल अपनाया, लेकिन उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना हम कहीं ना कहीं भूल गए। अगेन, I would not dig deeper into the politics. I'll go just by the stats. After the reign of Deng Xiaoping, agriculture reforms came into play. The major challenge was the unskilled labor, 95 crore unskilled labor. अब डेंग जाओपिंग ने क्या किया कि प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड करी वहां के लोगों को। जब प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड करी गई तो लोग अपने हिसाब से क्रॉप्स को उगाने लगे। जो लाभ होता था, जो बेनिफिट होता था, वो सीधा जाता था लोगों के पास और लोग कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे चाइनीज गवर्नमेंट को। इन द एरा ऑफ माओ जेडोंग, every single penny of power was extracted from the people, and as a result, there were famines, deaths all over the place. इस दफा लैंड पर कोई कंट्रोल नहीं था और जैसे ही एग्रीकल्चर आगे बढ़ा, डेंग जाओपिंग उसी समय कैशिंग कर गया। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम आपको छूट देते हैं कि आप कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉटन। एज वी ऑल नो, हमारे शर्ट के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। ये सब कारण है। टाउनशिप प्रोजेक्ट, अब इसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में समझिए। आर द फॉन्ट्स विजिबल? या ओके, थैंक यू। इसको इस तरीके से समझते हैं। ऊपर सबसे पहला हमारा कंपोनेंट कमर्शियल क्रॉप्स, देन टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, देन स्किल डेवलपमेंट। ये ग्राफ कुछ ऐसा मूव करेगा। ये देखिए, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और तीनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगेन, सबसे पहले इन्होंने कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करा। उससे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इनकम फार्मर्स को मिलने लगी, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ऑलरेडी थी तो उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं था और जो इंटरेस्ट रेट था वो था काफी कम। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम हुआ। कारण क्या था? इस टी और टी के बीच में कारण था स्किल्स। एक कैटलिस्ट होता है ना, एक केमिकल रिएक्शन में जो बाइंड करता है किसी भी प्रोटीन को और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। वैसा ही सी और टी के बीच में डेंग जाओपिंग ने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। यहाँ पर वो काफी पेशेंस के साथ आगे बढ़े। उन्होंने क्या करा कि जितने भी लोग धीरे धीरे करके उनका स्किल डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब क्योंकि उनको कमर्शियल नॉर्मल क्रॉप्स उगाने की आदत पड़ चुकी थी तो कमर्शियल क्रॉप्स भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने उस चीज से भी शुरू किया। Then again, in the supply side sector, after C, T, and S, what happened? That unskilled workers were skilled now. After that, what China did, they introduced the concept of TVE, Township and Village Enterprises. आप दिमाग देखिए, आप विजन देखिए आगे का, कि उनको पता था कि अब मेरा जो पॉपुलेशन है, जो मेरा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अब वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से उन्होंने इस चीज पर कंट्रोल पाया। नाउ लेट अस लुक एट द अप्रोचेस। ये देखिए, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बूस्टेड द कैश क्रॉप्स एंड चाइना बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन 1990s। ये जो ग्रोथ हुआ, इससे जो पैसा आया, वो चाइना ने क्या करा कि आगे जो टेक्नोलॉजिकल, ये फिर से मैं ग्राफ बना देता हूँ। हाँ सर, ज्वाइन करिए ना, अमिताभ बोल रहे हैं। CTNS। अच्छा, Now what happened? हाँ आइए। Now what happened? जो यहाँ पर इसकी पर एक्स्ट्रा कमाई हो रही थी, मान ले यहाँ पर कोई X नंबर ऑफ डॉलर्स हमने कम कमाया,
ये हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं एस में। तो जब एस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो बात वही हो गई कि सब कुछ हमारा है, ठीक है। In the era of Mao Zedong, what was the problem? The basic problems was they accepted the culture of top to bottom approach, जिसे आप trickle down effect भी कहते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, आई एम सॉरी फॉर द ड्राइंग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये एक पहाड़ है और ऊपर से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये जो पानी की बूंदे हैं ये नीचे आएंगी, इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हिस्ट्री ऑप्शनल में काफी सारी चीजों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट को या इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर माओ जेडोंग का विजन देखिए, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था। वो चाहते थे कि कंट्रोल उनके पास है, क्योंकि वो बहुत ही जटिल तरीके से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से जुड़े हुए। लेकिन डेंग जाओपिंग के पास ये प्रॉब्लम नहीं। ही टुक द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच थोड़ा टिपिकल होता है, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ऊपर नहीं जाता, पानी नीचे ही आएगा। लेकिन फिर भी डेंग जाओपिंग गेव हिज बेस्ट। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सबसे पहले करप्शन को एड्रेस करा। करप्टर जो भी करप्शन करते थे उनको बाहर निकाला, जेल भेजा और एक बेसिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे चाइना आगे बढ़ सके। उन्होंने प्राइवेट और जॉइंट स्टॉक ओनरशिप को प्रमोट किया और जो लोकल गवर्नमेंट थी जिससे लोगों को पावर दिया गया। भले वो सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में थे, लेकिन एक ऑटोनॉमी मेंटेन रखते थे। इसी कारणवश एक और डेटा मैं देता हूं आपको। इसी कारणवश क्या हुआ कि 1985 में, just imagine in the year of 1985, the contribution of small entrepreneurship was 13% of the GDP। आप समझ रहे, 13% उस समय, और बाद में 1990 में ये नंबर पहुंच गया आपका 30% पर। Hope I'm going slow so that everyone can listen, and if I'm too fast please tell me about it। नहीं, प्लीज कैरी ऑन, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। थैंक यू सर। 1985 में स्मॉल एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन 13% ऑफ द जीडीपी था, वहीं 1990s में ये कंट्रीब्यूशन 30% हो गया। 17% ऑफ गेन केवल 5 साल में। सदियों लग जाएगी करंट इकोनॉमी को, आफ्टर लुकिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज, द क्रूड ऑयल प्राइस एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस, ये 17% बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है अगर आप मेरे से पूछे तो। इससे क्या हुआ? एट दैट टाइम इन 1990s चाइना क्रिएटेड 10 करोड़ जॉब्स, 10 करोड़ जॉब्स इन दैट पीरियड ओनली। अब क्या हुआ? चाइना को पता था कि अब हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा, इसीलिए उन्होंने टेक्स्ट, एज डिस्कस्ड अर्लियर, दे मूव फ्रॉम टेक्सटाइल टू टेक्निकल एरियाज। बट फर्स्ट लेट अस लुक एट द, आई एम सॉरी, ये आगे आएगा। हाँ, let's move to the textiles। yes, textiles, I hope it's visible। अब यहां पर एक कैश क्रॉप बूम आया, मैसिव प्राइवेट ओनरशिप आई और लोकली अवेलेबल क्रॉप्स आए। देखिए 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला कैश क्रॉप बूम, जो उस समय की जरूरत थी। आप 1960s का पीरियड देखिए, वहां पे, और इवन आप वर्ल्ड वॉर के समय चल जाइए, वहां पर काफी जरूरत थी कपड़ों की, और आगे जाकर के ये चीज कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। चाइना कॉपीड एवरीथिंग। देयर इज अ शो which goes by the name Dark, it's available on Netflix। वहां पर एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है फ्यूचर में, और जब वहां पे, सॉरी पास्ट में, और वहां जाकर के चेक करा जाता है तो उसके कपड़े पर मेड इन चाइना लिखा होता है। वैसे वो लोग गेस करते हैं कि ही इज नॉट फ्रॉम दिस रियलिटी ना। कैश क्रॉप्स बूम हुआ,
सेकेंड, लोकली अवेलेबल क्रॉप्स थे, क्रॉप्स। इससे क्या हुआ कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा कहीं बाहर जा ही नहीं रहा था, चाइना कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं रहा था। हाँ, बेसिक नेसेसिटीज तो उसको इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन चाइना के ऊपर उतना प्रेशर कभी था ही नहीं। लोकली अवेलेबल क्रॉप्स थे और लार्जेस्ट चीप लेबर। इस 3C को आप प्लीज याद रखिए। टू द एस्पिरेंट्स हु विल बी वाचिंग दिस, आप इस 3C को याद रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। The first is the cash crop boom, second are the crops, and third is the cheap labor. 1993 में 95% ऑफ ग्रोथ ये चाइना एक्सपेक्ट करा, और साथ ही साथ वहीं पे डेंग जाओपिंग की ओपन डोर पॉलिसी आ गई। बाद में क्या हुआ? बाद में चाइना ने इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में डंप कर दिया। अब एक सवाल ये आता है कि इतनी सक्सेसफुल इंडस्ट्री आप कैसे डंप कर सकते हो? आप पूरी तरीके से तो नहीं, पर कुछ तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हो। अगेन, दिस वॉज द विजन ऑफ डेंग जाओपिंग। अगेन हम ये ट्राइंगल देखते हैं। आई एम ड्रॉइंग बेसिकली दीज so that people can understand easily by the means of graph and all. सबसे पहले ओपन डोर पॉलिसी आई। उन्होंने साउथ ईस्ट, ये हमारा प्यारा भारत और साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने डंप करना शुरू करा। अब क्या हुआ? सबसे पहले आया था चीप लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर, देन मिडिल स्किल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सटाइल। नाउ इट वाज द टाइम फॉर चाइना टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। इनको पता था कि जो भी हो गई चीजें मेरे हिसाब से धीरे धीरे होंगी। अब क्या हुआ? आफ्टर द डंपिंग, डेंग मेड एजुकेशन यूनिवर्सल इन हिज कंट्री। 90% रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटेड टू 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी चाइना में जो भी एजुकेशन होता है उसका 70% खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट उठाती है। वो ये नहीं देखती कि वो बच्चा किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, वो चाइना नहीं देखता। चाइना देखता है कि ये लड़का या लड़की या जो भी है, रिस्पेक्टिव जेंडर, एज दे आर स्पेक्ट्रम्स दीज डेज, वो ये देखता है कि ये मेरा रिसोर्स है, ये मेरा डेमोग्राफी है, और इसको हम कैपिटलाइज करेंगे जैसे भी करें। As I spoke, R&D 70% कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेयर करा चाइनीज गवर्नमेंट। अब 9 इयर्स जो स्कूलिंग होती है, क्लास 1 से स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक, उसको चाइना ने फ्री कर दिया, उसको यूनिवर्सल कर दिया। अब जब बेसिक एजुकेशन आपके पास आ रहा है तो आपके पास एक विजन, एक थॉट प्रोसेस आता है। एक बच्चा कुछ नहीं सोच सकता है, आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो बच्चा एजुकेटेड है, अगर आपने उसको एजुकेट किया है कि बेटा गरम चीज को मत छूना या ये मत करना, वो एजुकेटेड है, वो एनलाइटेंड है, वो सोचेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी बीच चाइना ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था TVET, TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। ऐसे मैंने PPT दे दी है, पर फिर भी कोई भी डाउट हो तो हम ऑलवेज अवेलेबल। TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, इसमें बच्चों को इंटर्नशिप दी जाती है। आई हैड द स्लाइड्स फॉर दैट। बच्चों को एक इंटर्नशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है। नाउ लेट्स हैव अनदर डेटा। इन द ईयर 1978 1.65 लाख, यानी 1.65 लाख लोग ग्रेजुएट थे। वहीं 1990s में वो नंबर 9.5 लाख पहुंच गया। जस्ट इमेजिन, जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 12 years they achieved it। और ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर लिए जो आगे उनका काम भी नहीं आ रहा है, वो टेक्निकल अप्रोच में आ रहा है। अब नाउ चाइना रेडी था अपने नेक्स्ट फेज के लिए, जिससे वो सालों से तैयारी कर रहा था।
चाइना ये जान चुका था कि टेक्निकल इंडस्ट्री इज द फ्यूचर, टेक्निकल इंडस्ट्री इज शुड बी द लेक्चर एट हैंड, thus they shifted to electronic means. 1960s में क्या हुआ, कोरियन कंपनी और जापानीज कंपनी आए और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया चाइना में. इन्वेस्टमेंट का कारण, इफ someone asks you इन्वेस्टमेंट का क्या कारण था, सबसे पहला कारण था चीप लेबर, सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, बिजनेस सॉरी, थर्ड नो टैक्सेस और वेरी लेस टैक्सेस, और सबसे बड़ी बात कि चीप लेबर प्लस स्किल्ड लेबर्स. यहां पर हम लैग कर रहे हैं करेंटली. तो हम कह रहे हैं कि हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए और अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे पास स्किल नहीं है. लेट मी शेयर अ स्टोरी. हुआ क्या कि फ्यू डेज बैक आई वाज ट्रैवलिंग और मैंने रैपिडो करा, मेरी गाड़ी नहीं थी उस समय मेरे पास. आई आस्क्ड द पर्सन कि आप क्या करते हो. ही सेड कि सर मैं इंजीनियर हूँ, और वो रैपिडो पे गाड़ी चला रहा है वो बंदा. खैर ही वाज ऑनेस्ट, ही वाज डूइंग हिज वर्क, मे गॉड ब्लेस हिम. पर ये हमारे कंट्री के लिए शर्म की बात है. Now, what China did is the fourth factor in it. They made special economic zones. यहाँ पर आप अब इंडस्ट्री, जैसे आपका बोकारो स्टील सिटी है, वैसे ही चीज को इमेजिन करिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे. अब इन्होंने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी फॉर द राइटिंग, मेरे पास पेन नहीं है, डिजिटल पेन, इसलिए ये हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट करा. सप्लाई चेन जो बॉटल नेक्स थे, यानी कि सप्लाई में आपके फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई, मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई, लेबर्स यूनियन का प्रोटेस्ट है, उन सारी चीजों को एड्रेस करा और रेलवे और ग्रिड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया. ग्रिड्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, जो तार होती है हमारी. शेंजन यहां है. शेंजन इन द ईयर 1980s. 1980s में क्या हुआ, शेंजन एक प्रांत है चाइना का, जिसमें 60,000 प्लस फैक्ट्री सेटअप हुई और उसका कंट्रीब्यूशन था ऑफ 30% एक्सपोर्ट्स. और फॉक्सकॉन, आप देख सकते हैं नाम यहाँ, फॉक्सकॉन solely contributed the most. और जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी सॉफ्टकॉन ने ही लगाया था. अब जैसा कि आई डिस्कस्ड अर्लियर, फ्यूचर वाज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब इनके पास तो ऑलरेडी था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका क्या करते. तो इन्होंने जो छोटी मोटी कंट्रीज थी, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी, उनमें इसको डंप करना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्ट फ्रॉम इंडियाज नेबर बांग्लादेश, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आए. 1990s में चाइना समझ गया था कि हमारे पास चीप लेबर है, और एक पैरेलल चीज जो चल रही थी, यूएसए का टेक बूम, टेक्नोलॉजिकल बूम. इससे क्या हो रहा था कि यूएस को एक ऐसा प्लेस चाहिए जो चीपर हो. ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट माइंडसेट, चीप एंड बेस्ट. चीप लेबर हो, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, थर्ड प्रॉपर टैक्सेस ना लिए जाएं ज्यादा, फोर्थ लेबर यूनियन पे ज्यादा फोकस ना किया जाए ताकि उनका प्लांट आगे बढ़ सके. अब आप देखिए, क्या ये चाइना के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है? चाइना हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर इटसेल्फ. इट नेवर begged, it never went away for anyone to support him. अब क्या हुआ, इन सारी चीजों के रहते हुए चाइना गॉट द बेटर बार्गेनिंग पावर. सपोज आप कहीं खड़े हैं, आपको किसी बच्चे के लिए कोई टॉय लेना है, आपके पास ऑलरेडी एक टॉय है. अब दुकानदार कह रहा है कि नहीं, आप इसी दाम पर इसको लीजिए. पर अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे दूसरे दुकान में, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे चीजें सस्ती मिलती हैं,
तो ऑब्वियसली आप अल्टरनेट के लिए जाइएगा। तो बेस्ट बार्गेनिंग सोर्सेज वाज विद चाइना। चाइना हैज एवरीथिंग व्हाट यूएस वांटेड, लेकिन चाइना यही नहीं माना। they were in better bargaining power, but they made a condition। CFI कहते हैं इसको, जियोपॉलिटिक्स के टर्म में इसको CFI कहते हैं, कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट PPTs अगेन आई एम सेइंग आई हैव प्रोवाइडेड। कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। इससे क्या हुआ कि कंपनीज तो आ गई, गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये सारे आप देख सकते हैं, कंपनीज तो आ गई, पर सवाल ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजी यहाँ लाएंगी। अब क्या किया चाइनीज गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये कहा कि आप भले यहाँ आके प्रोड्यूस करिएगा, पर आपको हमारे लोकल पीपल को सिखाना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे बनती है। जब तक आप नहीं सिखाइएगा हम आपको इजाजत नहीं देने वाले। एंड यूएस वाज अवेयर ऑफ दैट, सो देयर वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डील बिटवीन देम। आईफोन जो अक्सर हम लोगों के पास होता है, वो फॉक्सकॉन बनाती है। ये पिछले साइट्स में मैंने दिखाया था। एनीवेज, अगर स्लाइड मिल जाती है तो आई विल शो यू। देखिए, Deng Xiaoping worked extensively to utilize China's massive workforce by equipping them by requisite skills and capacity। अब क्या हुआ, फॉक्सकॉन आईफोन बनाती है, उसके बाद HP है, डेल है, ये सारी कंपनीज चाइना में आते गई और उसके बाद चाइना ने एक पॉलिसी बनाई जिसको कहते हैं शानजाई, SHANZHAI। इसका मतलब होता है कॉपी कैट। जो चाइना अभी करता है, दूसरी टेक्नोलॉजी ली, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करा या जो भी करा, वो इस चीज से आगे बढ़ते हैं। इससे क्या हुआ, जैसे ही वहां के लोग सीखने लगे इस चीज को, तो चाइना के जो लोकल कंपनीज थी वो आ गई मार्केट में, उन्होंने उसी चीज को कॉपी कर लिया बहुत सस्ते प्राइस में। अगर आपको आईफोन चाहिए 60,000 अगर बेस प्राइस है, तो वही चाइना में आपको 50 से 40,000 में मिल जाएगा। इतना आसान है। जिस फोन पर मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ वो शाओमी का है, वो भी इंडियन नहीं है, वो चाइनीज है, पर मैं इसको खरीदा, कारण इसका इंटरफेस बहुत स्मूथ है, PPT अच्छे से हो जाता, और बहुत सारे कारण है। आप कितना भी कर लीजिए, वी आर पैट्रियोटिक एनफ, बिजनेस इज बिजनेस एट द एंड। ना इसके कारण लेनोवो, शाओमी जैसी कंपनीज आगे बढ़ी और एज अ रिजल्ट इतना घाटा होने लगा सैमसंग को कि उन्होंने 1992 में चाइना में जो अपना बनाई हुई फैक्ट्री थी उसको शट डाउन कर दिया। अब देखिए, 4 कंपोनेंट्स हमने देख लिए। पहला कंपोनेंट था फार्मिंग का, दूसरा टेक्सटाइल्स का, और तीसरा टेक्निकल चीजों का, FTT। ये याद रहने के लिए मैं लिख देता हूँ, FTT। अब सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? व्हाइट कॉलर जॉब्स, यस। तो अब हम टेक बेस्ड इंडस्ट्री जा रहे हैं, तो हमें जरूरत होगी फॉर समवन हु इज एबल टू स्पीक, हु हैज अ बेटर कैपेसिटी टू टर्न इन द कंज्यूमर्स एंड एल्स। अब देखिए सर्विस सेक्टर का एक और डेटा, 1990s में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% था, बस 25%। खैर हमारे लिए, हमारे हिसाब से ज्यादा होगा, पर 25% लेते हैं। वहीं 2019 में जाकर के ये नंबर 54% पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लूप और कितना बड़ा लूप होल है हमारे सिस्टम में कि हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। माइक्रोसॉफ्ट, आप यकीन करना चाहे तो प्लीज करिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में अकेले $280 मिलियन का अकेले R&D HQ बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स। इसी कॉपी कैट मेथड के चलते अलीबाबा, वीचैट जैसी कंपनियों का राइज हुआ। ये देखिए वीचैट,
वीचैट को आई नेवर यूज्ड वीचैट, मुझे नहीं मालूम कि इसके क्या फीचर्स हैं, लेकिन वीचैट कहा जाता है कि स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे चीजों का एक कल्मिनेशन है। अब बढ़ते हैं आगे। इन सारी चीजों के बाद चाइना अब रेडी था खुद को आगे बढ़ाने के लिए। एक और कंपनी है जिसका नाम है बाइडू। बाइजूस नहीं है, वो है बाइडू, बाइडू ऐसे लिखते हैं इसको, एंड देयर इज अ कॉ। बाइडू अभी एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, क्रोम हो गया आपका, एक सर्च इंजन है जो अभी 80 कंट्रीज में रन कर रहा है। शायद आप लोगों ने, मैं खुद क्या बताऊं, मैंने पहली बार नाम सुना कि दिस थिंग बाइडू इज रनिंग इन 80 कंट्रीज, और वो 80 ऐसे कौन से देश हैं जो भरोसा कर रहे हैं चाइना की सर्च इंजन पर। क्या उनका डेटा स्टोर नहीं होगा, क्या उनका डेटा लीक नहीं होगा? आई एम क्वाइट एस्टोनिश्ड बाय दिस फैक्ट। 2010 में क्या हुआ, इन सारी चीजों को भापते हुए और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पॉलिसी के चलते गूगल ने चाइना से क्विट कर दिया और उन्होंने कहा कि नई चीजों को हम अपने तरफ से ले जाएंगे और चीजों को अपने तरफ से बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट फेज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर को एंड नहीं किया जा सकता। चाइना के पास क्या था? सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट, जिसको CNE बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर चीजें होती है जैसे चिप्स, कंडक्टर्स, जो फोन बनाने में यूज होता है। हुआवे और ZTE ऐसी ही कंपनी है जो चाइनीज है, लेकिन हुआ क्या कि स्वीडन ने इन सारे चीजों पर बैन लगाया हुआ है अंडर द चाइनीज इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ। चाइनीज इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ ये कहता है, ये क्या कहता है किसी को नहीं पता है। ये बेसिकली एक हिडन टूल है जिसे कंपनियां जाना नहीं चाहती हैं। अभी करेंटली चाइना $160 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना को इससे बस बढ़ावा ही मिल रहा है। अगेन देयर कम्स द पीरियड ऑफ 2009 सबप्राइम क्राइसिस। पिछले कुछ लेक्चर्स में आई हैव एड्रेस्ड व्हाट वाज सबप्राइम क्राइसिस, पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। यूएस में एक स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल वर्ड्स में समझिए तो यूएसए को पैसों का काफी घाटा हुआ था, रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, ओवर प्रोडक्शन था और कंजम्पशन कुछ नहीं था। रियल स्टेट से लेना देना था, ओवर प्रोडक्शन था, फिर से कह रहा हूँ ओवर प्रोडक्शन था और डिमांड नहीं था। उसी को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। अब चाइना के पास चैलेंज क्या था? 2008 सबप्राइम क्राइसिस विथ एजिंग पॉपुलेशन, प्रीडेटरी प्लस डंपिंग एक्टिविटी। प्रीडेटरी कहने का मतलब छोटे मोटे कंट्रीज को लोन देना फिर उनको फंसा लेना, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा श्रीलंका। मालदीव भी जाएगा कुछ दिनों में, जो उनका हाल है। अगेन चाइना वेंट फॉर गो ग्लोबल स्ट्रैटेजी। गो ग्लोबल स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है ज्यादा, जो इनका BRI इनिशिएटिव है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन फिर भी ये उतना सक्सेसफुल हो नहीं रहा क्योंकि जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पे नहीं कर पा रहे। ये था कारण। अब चलते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूं एक फोटो, ये देखिए। कैन यू सी अ मेढक इन अ bowl which is boiling? हेलो, We are seeing. नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा बोल हम रहे हैं। लोग देख- It's very good, sir. We continue, please, sir. We are here. दिस इज अ फ्रॉग। ये एक बर्तन में है जिसके अंदर एक मेढक है और पानी उबल रहा है। इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी। जियोपॉलिटिक्स में इसे बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी कहते हैं। होता क्या है कि कोई भी मेंढक है आपके पास, जैसे चाइनीज लोग तो खाते हैं इन सारी चीजों को, ये चाइना से ही आया है। होता क्या है कि आप एक बर्तन लीजिए
उसमें पानी को पूरी तरीके से बॉयल, एकदम उफान मारने वाला पानी जो होता है, पूरी तरीके से उसको हीट कर दीजिए और उसके अंदर एक मेंढक डालिए, वो कूद के भाग जाएगा। भले आप उसको ढक दीजिए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। चाइना क्या करा, चाइना बॉइलिंग फ्रॉग पॉलिसी को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट क्या, इंट्रोड्यूस करा। होता यह है कि एक बर्तन में आप पानी लीजिए, उसमें उस मेंढक को डाल दीजिए और उसकी आंच को धीरे धीरे बढ़ाइए। होगा क्या कि पहले उस फ्रॉग को लगेगा कि टेम्परेचर हल्का वार्म हो रहा है, तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। फिर आप और टेम्परेचर बढ़ाइए तो वो और खुद को एडजस्ट करेगा, और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब मेढक को लगने लगेगा कि नहीं भैया, पानी ज्यादा गर्म हो रहा है, अब ना होगा। तो जब फ्रॉग जंप करने की कोशिश करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके जो पैर हैं वो गल चुके हैं, पैर अब आगे नहीं जा सकते। इसी को कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी या डिप्लोमेसी, कि कंट्री को धीरे धीरे लोन देते जाइए, लास्ट में ऐसी हालत कर जाइए कि वो डिफॉल्ट कर जाए। और डिफॉल्ट लेकर के कंट्री तो कहीं भाग नहीं सकती है, कंट्री जो है वहीं रहेगी। तो अब वहां के लोग फंसे। 99 साल का लीज मिला कोलंबो पोर्ट पर, यही हाल हुआ। यही गलती मालदीव्स कर रहा है, बांग्लादेश अभी भी बचा हुआ है, ये गलती नेपाल करने जा रहा था, खैर उनका नहीं पता। आई विल टेक दिस टॉपिक सम अदर डे। ये सारी बातें हैं। अब देखिए, एक आरोप लगा था चाइना पर, अब करंट से रिलेटेड बातें करता हूँ। एक आरोप लगा चाइना पर कि देयर वाज अ रिटन एविडेंस विसल ब्लोअर एलिगेशंस ऑफ द यूएन कवर अप ऑफ इट्स स्पेशल फेवर्स टू द पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो पीआरसी लिखते हैं खुद को। एंड द फन फैक्टर इज जो नॉर्थ कोरिया है वो खुद को बताती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। सच एन आयरनी। चाइना पर ये दोष लगा है कि ये लोगों को कैद कर रखते हैं, स्लेवरी करवाते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में स्लेवरी बैन है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है जो बाहर नहीं आता है। कुछ एक आध आ गया तो आ गया। अभी एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो का थोड़ा सा एक्सर्ट दे देता हूं। हुआ क्या था कि चाइना पर इस बात का आरोप लगा कि आप यूएन के ऑफिशियल्स को पैसे देते हैं और उनको खरीद लिया जाता है। आप समझ रहे, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स को घूस दी जाती है ताकि चाइना के अगेंस्ट कोई वोटिंग हो तो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, और छोटे मोटे लोगों को, छोटे मोटे देश को भी। ये वीडियो उसी पर बात कर रहा है। अगर आवाज नहीं आए तो प्लीज बताइएगा, आई विल ट्राई टू एडजस्ट समथिंग। बाकी क्योंकि सबटाइटल्स ऑन है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रही न्यूज। चाइना अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबिंग यूएन ऑफिशियल्स टू सर्व इट्स इंटरेस्ट्स। ये रहा वीडियो। membership. Hello? With the Sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah, let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. Thank you very much for letting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. इस ऑफिशियल को कुछ कहना ही नहीं था। ताइवान से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आया, ये इस यूएन के ऑफिशियल ने उसको डाइवर्ट कर दिया। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे। अब लेट्स
ये देखिए, द बूस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ चाइना पुल्ड आउट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड रेज द इनकम ऑफ फार्मर्स। सबसे बेसिक बात वही है कि आप जब तक फार्मर की इनकम बढ़ाइएगा नहीं, तब तक चीजें आगे नहीं होने जाने वाली है। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो लोवेस्ट ऑफ द लो है उसको आपको एक स्किल देना है, फिर उसके आगे जो हल्की अच्छी कैटेगरी का है उसको दूसरा स्किल देना है, और जो हाई क्वालिटी है आप उसको सिविल सर्वेंट बनाइए। अब यूपीएससी नहीं, एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल, कोई कंपनी का भी हो सकता है। अगेन चाइना के पास ये सारी चीजें नहीं थी। ये देखिए, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम की इमेज है जो हर चाइनीज स्टूडेंट को जाना पड़ता है। इस टेक्निकल कोई इंजन है। चाइना ने ना कई बार फिलीपींस को भी ऑफर दिया है। चाइना इतना अग्रेसिव हो चुका है कि फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक पैक्ट है, सिक्योरिटी पैक्ट। अगर कोई भी अटैक फिलीपींस पर होता है तो उसको यूएस पर अटैक माना जाएगा, लेकिन फिर भी चाइना ने वाटर गन अटैक किया जो अपने में ही बहुत ज़्यादा डेंजरस मूव था। ये देखिए, चाइना फायर्स वाटर कैनन एट फिलीपीन शिप्स इन साउथ चाइना सी। Guangdong province in China has emerged as a hub of electronics technology and also known as Chinese Silicon Valley. मैंने आपको एरिया लोकेट नहीं करा था, ये है उसका मैप। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑकस का क्या रूल है इसमें? ऑकस होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये 3 कंट्रीज हैं जिसको काफ़ी तरीके से कंडेम किया गया। देखिए, अमेजोन का अल्टरनेटिव अलीबाबा, और ये रहा चाइना का ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यूनाइटेड नेशंस को पैसे मिलते हैं, ये प्रूफ हो गया पिछले वीडियो से, और जो भी उइगुर मुस्लिम पे अत्याचार हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, उसको शांत कराने के लिए चाइना बहुत ही हैवी अमाउंट खर्च करता है। ये है ऑकस। और अकॉर्डिंग टू वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, द आउटपुट इंक्रीज बाय 25% अ ईयर फ्रॉम मिड 1980s टू द मिड 1990s। ये चाइना के कुछ बेसिक डेटाज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, थैंक्स टू इट, मुझे मिले, सो आई प्रेजेंट इट टू यू। एंड फॉर, और हाँ, एक लास्ट टॉपिक, क्रेमलिन सेज ऑकस सबमरीन डील रेजेस प्रोलिफरेशन क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियर ग्रुप बन सकता है जिसका डर है। वर्ल्ड पीस के लिए एक न्यूक्लियर ग्रुप प्रोलिफरेशन किसी भी टाइप का होना बहुत ही डर का माहौल क्रिएट कर सकता है, जैसा अभी करंट सिचुएशन चल रहा है। अगेन ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सीसीपी। और ये रहा मेरा स्टेटस द हिंदू। अगर आपको सुबह सुबह नहीं पूरा पढ़ना तो मेरे स्टेटस पर इसकी कंप्लीट एनालिसिस होती है, 3-4 लाइन या एक क्रक्स में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो आप चाहे तो मेरा स्टेटस देख सकते हैं। दैट वॉज इन फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो। It was a very good presentation. Thank very you, good Mr. Harsh. presentation, very nice presentation, वंडरफुल। और ये फ्रॉग वाला और ये जो कंसेप्ट आपने बताया हम लोगों ने पहली बार सुना, और इतना बढ़िया से इतना इजीली आपने उसको डिस्क्राइब किया। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वी कैनॉट कंपेयर यू विथ अदर इकोनॉमिक्स, नो। हाँ, और ये हमारे जितने लोग हैं वो कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारे आपका बताइए क्या भाषण बहुत ही मतलब ज्ञान था, मतलब नॉलेज शेयरिंग था, बहुत अच्छा बोले। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, अभी वर्तमान इस स्थिति में
ठीक। ये मैं आपके भाषण को सप्लीमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अभी के वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जो अमेरिका और भारत के कारण जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग हब वाली कंसेप्ट जो खींच रहा है अमेरिका भी, और उसमें सारे लोग भारत, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह वगैरह में जा रहे हैं इंडस्ट्रीज जो, तो इसमें भी चाइना थोड़ा सा अभी उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश है। और यहाँ पर आपसे यही शेयर करना है कि वो अपने बैंकों से ऑर्डर किया है कि पैसे नहीं निकालने देता है। यदि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी इंटेंशनली, कोई इंडियन पॉलिटिशियन अपने पैसे स्विस बैंक से निकाल के चाइना के बैंक में रखे हुए हैं, तो चाइना गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि यदि आप सच एंड सच अमाउंट से अधिक $1 मिलियन से अधिक पैसा निकाल रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा। उसमें जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन है वो बेचारे फंस गए, स्विस बैंक से निकाल के चाइना में तो डाल दिए। तो उसके अलावा चाइना का कुछ अपना रिजर्व मनी भी है जो कि यूएस रखा हुआ है, तो चाइना अब उसको इनकैश कराना चाह रहा है, तो यूएस उसको इनकैश करने नहीं दे रहा है। तो अब चाइना क्या कर रहा है, वो अपना ट्रेड पॉलिसी में बहुत ही वही जो फ्रॉड पॉलिसी वाला तो भी कंसेप्ट है, बड़े गंदे ढंग से ट्रेडिंग पॉलिसी को चेंज कर रहा है ताकि उसका जो पैसा है वो मतलब वर्ल्ड मार्केट को बेवकूफ बना के अपना पैसा खींचे। नंबर 1। सबसे खतरनाक चीज ये है कि चाइनीज लोग हर जगह से समस्त संसार में इंक्लूडिंग इंडिया टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं। ठीक है, उनका R&D में खर्चा है, वो अच्छा है, लेकिन वो इसमें बड़े तेज हैं टेक्नोलॉजी चोरी करने में और वही रिवर्स इंजीनियरिंग करने में, उसका डुप्लीकेट माल बनाने में। तो इसी के कारण चाइना का कुछ अपना ओरिजिनल प्रोप्राइटरी चीज उभर के नहीं आ रहा, और वो हर जगह अमेरिका, और मैं पहले अमेरिका और भारत की ही बात कर रहा हूं, इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए वो अपना पूरा पैसा खर्चा करता है। यदि आज जो हम लोग ये भाषण कर रहे हैं, मैं कुछ बहुत ही भयंकर आरोप लगाऊं चाइना पर, तो कल हमको फोन आ जाएगा। यदि मैं कोई आर्टिकल पब्लिश कर दूं टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में, अगेंस्ट चाइना, तो तुरंत जो हमारे अपने देश के लोग हैं, भारतीय लोग जिसको चाइना स्लीपर सेल में रखा है, वो तुरंत हमारे पास आएगा कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है चाइना से, इतना डॉलर लीजिए, अपना आर्टिकल को मतलब हटा लीजिए, या यू चेंज योर थॉट। इस चीज में भी चाइना अपना पैसा खर्चा बहुत जोरों से कर रहा है। और जैसे आपने यूएन की बात कही, वो तो ये हाल में आया है, तो चाइना अपना हर क्षेत्र में हर जगह पैसे से लोगों को खरीद रहा है और भी गंदे काम कर रहा है, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को मरवा भी रहा है, या उसको मतलब हनी ट्रैप जो भी होता है, बहुत सारे गंदे गंदे रास्ते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। और उसका अभी प्राइम एनिमी इंडिया है। वो इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के कंज्यूमर मार्केट में, हर जगह वो अपना एक छाप छोड़ना चाह रहा है, और उसकी अपने भारत की इकोनॉमी को खोखला करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि चाइना का जो एक बड़ा अजीबोगरीब माइंडसेट है कि वही सलामी स्लाइसिंग, मतलब अपने पड़ोसी का जमीन हड़पो, जिसको हम लोग पॉलिटिकली बोलते हैं विस्तारवादी नीति। तो ये सब चीजें हैं जो बेशर्म होकर चाइना इसको फॉलो कर रहा है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इन द लॉन्ग रन, जैसा कि अभी हमारे ही स्पीकर राम मोहन जी बोल के गए हैं
चाइना की अंदर की हालत अच्छी नहीं है सर। और आपने जो बहुत अच्छे ढंग से उसका क्रमिक विकास बताया, अपना देश भी सर नई एजुकेशन पॉलिसी लाया है, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, फार्मिंग जो 3 लॉ आए थे उसको वापस ले लिया गया, होपफुली वो फिर वापस आएगा। तो चाइना अपने ढंग से चल रहा है और हम लोग अपना देश भारत अपने ढंग से चल रहा है। अपने ढंग से इन सेंस अपने कायदे से, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनारियो जो अपना देश का है। मैं प्रो जनता पार्टी नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस ढंग से अभी जो वर्तमान सरकार अपने देश की इकोनॉमी को चला रही है, इसमें भी चाइना अंदर घुसना चाह रहा है। लेकिन चाइना और इंडिया किसी कारण से, जस्ट एक इमेजिनरी आइडिया दे रहा हूं, पक्का दोस्त बन गए तो अमेरिका बौखला जाएगा, मतलब अमेरिका पागल हो जाएगा। तो अमेरिका का इंटेंशन यही है कि चाइना इंडिया लड़ता भी रहे और हमसे आगे नहीं भी निकले। तो अभी चाइना और इंडिया जो ब्रिक्स वाले हैं, वो अपना जो नया करेंसी निकालने जा रहे हैं, वो अमेरिकन डॉलर को वीक करेगा। और आपने सुना होगा सर, आई मीन सर मतलब ऑल द सर्स इन दिस ग्रुप, कि इंडिया सोना बहुत खरीद रहा है और इंडिया में इतना ह्यूज सोना खरीदने के कारण ही सोना का मार्केट अभी बहुत हाई हो गया है। तो सोना खरीदने का कारण एक ही कारण है कि हमारा जो गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा तो हम अपने देश में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और अमेरिका के डॉलर के भरोसे नहीं रहेंगे। तो इस क्षेत्र में आपको अमेरिका भी बहुत वाचफुल है। एक और बात बोल रहा हूँ सर, जब G20 मीट हुआ था तो हम लोगों ने एक जो रोड निकाला था इंडिया से यूरोप में व्यापार करने का, थ्रू इजराइल और सऊदी अरेबिया, जो भी है, बॉम्बे से, इसी रूट को तबाह करने के लिए ये जो हमास, ये जो इजराइल पर जो अटैक जो हुआ है, ये चाइना किया था, लेकिन चाइना सामने नहीं आया। उसका पर्पस यही था कि ये जो इंडिया से यूरोप तक जो रूट बनेगा, बॉम्बे से, सऊदी अरब से, इजराइल होते हुए ब्लॉक जो भी रास्ता है, ये जो रूट है उसी को डिस्टर्ब करने के लिए ये आपका चाइना ईरान को उकसाया, ईरान अपना हमास को, मतलब हम लोग अपना लोकल भाषा बोले चाबी भरा, और तब हमास अटैक हुआ है ताकि ये पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब चीजें जो जियो पॉलिटिक्स में है सर, इस सब में चाइना कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन आई सैल्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी है, अपना देश इसी सब कारणों से धीरे धीरे रादर ऑफ द स्पीड पकड़ लिया, आगे बढ़ रहा है। और कोई भी अपने देश की पॉलिसी गंदी नहीं है, लेकिन इन द नेशनल इंटरेस्ट अपना भारत देश सारे संसार के सभी देशों को आंख दिखाता है और साफ साफ कहता है हमें अपने देश के लिए ये करना है, तो वो अपना देश सभी देश से दोस्ती करके चल रहा है। ये टॉपिक ऐसा है हर्ष जी की मैं घंटों बोल सकता हूँ, फिर भी मैं यहीं पर अपने को रोकता हूँ। थैंक यू। और वहाँ भी प्रसादी है, वो भी प्रसादी है। बहुत अच्छा नागेश जी। और लेकिन एक चीज जो उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट पर चाइना बहुत खर्च करता है, अपने बच्चों को फ्री पढ़ाता है और सब में कंपलसरी स्किल देता है, नंबर 1। नंबर 2, बाहरी यूएसए वगैरह के जो लोग आते हैं जो भी काम करने, तो अपना स्किल अपने लोगों को सिखा देने को कहता है, तो स्किल वाइज इन लोगों को डेवलप करता है।
और स्किल वाइज डेवलप करके और अपने को एकदम स्वतंत्र और किसी पर डिपेंड नहीं रहने का बात सिखाता है। और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ स्किल, और जैसे ये उन्होंने हर्ष साहब ने बताया इंजीनियर दूसरे काम में लगा हुआ था, इंजीनियर का रिकॉग्निशन था जिससे हर साहब को बड़ा परेशानी हुई। तो इस तरह का हम लोगों के यहाँ टैलेंट रिकॉग्निशन नहीं है, टैलेंट रिकॉग्निशन नहीं, और लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। ये शायद वहाँ पे चाइनीज लोग अपने में नहीं करते हैं। ये सारी चीजें बहुत कुछ सीखने की बात है हम लोगों के लिए। और ये फ्रॉग बॉइलिंग वाला ये कंसेप्ट जो उन्होंने बताया ये बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग को मतलब मालूम नहीं था इस तरह से वो डैमेज करके लोगों को यूज करता है, मतलब कमजोर करके सबको लोन वगैरह दे दे करके ये इस तरह से ये एक हरकत करता है। तो बहुत सारी बातें मालूम हुई जिससे चाइनीज राइज कर रहा है। और नंबर 2 हम बहुत सारे चीज उसके डिमेरिट को तो देख रहे हैं, लेकिन उसके मेरिट को देख करके हम उसको अडॉप्ट करें तो शायद इंडिया भी बहुत आगे बढ़ जाए। इंडिया प्रोग्रेस जरूर कर रहा है लेकिन यूनिटी नहीं ला पा रहा है। चाइनीज में पैट्रियोटिज्म है लेकिन हम लोगों में उतना पैट्रियोटिज्म नहीं है। हमारे ही देश के लोग, जैसे आपने बताया कि हमारे ही देश के लोग खबर कर देते हैं और ये हमारे पास फोन आने लगता है कि आपको क्या तकलीफ है, आप इतना डॉलर, और ये डॉलर लेकर के ये चुप भी हो जाते हैं, अपने आर्टिकल को हटा भी देते हैं। तो ये सब चीज हमारे में कमजोरियां भी हैं, तो इन कमजोरियों को ओवरकम करना होगा। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम करने नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ पर मतलब टैलेंट को तो एकदम उखाड़ फेंको और उसको इतना डिमोरलाइज करो, उसको इतना करो कि ये फिर सर उठा नहीं पाए। हमने ऐसा बहुत फेस किया, अपने बहुत देखा है। और बस खाली मतलब और आपके किए हुए कर्म को सब अपने ऊपर में ले लेता है। तो इस तरह की यहाँ पर टेंडेंसी और लेग पुलिंग का टेंडेंसी है, ये इंडिया को लेकर के नीचे गिराता जाता है। और हम उन्नति के रास्ते में रहते हुए भी हमारे पास इतना नेचुरल रिसोर्स और सारी चीजें हैं, हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हमारे काल शेट्टी साहब कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलें। काल शेट्टी साहब यू वांट टू से समथिंग? अभय कृष्णन जी भी कुछ बोलना चाहते हैं तो काल शेट्टी साहब यदि नहीं बोल रहे तो सर मैं कुछ बोल रहे हैं काल शेट्टी साहब बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर। बहुत स्टडी अभ्यास अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, एक ग्रेड का, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया इन्होंने और बहुत अच्छा स्लाइड बनाया है। और आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे काल शेट्टी साहब? नहीं सर, बहुत अच्छा, उसके बाद ही डिस्कशन अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, अभय कृष्णन साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो मैंने सर मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूं। अपने देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए आई सैल्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑल राउंड एफर्ट हो रहा है, लेकिन स्किल डेवलप होने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो अब ये मैंने अपने एजुकेशनल, जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया आफ्टर रिटायरमेंट, मैं लोगों को समझा के सिखा के मोटिवेट करके सारा थक गया सर। बीआईटी में लोग चाहते हैं कि हमको आराम की नौकरी मिले। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, ऐसी नौकरी मिले तो वो उनके घर के बगल में ही वो जाके नौकरी करने, मतलब उनको अधिक तकलीफ नहीं झेलना पड़े, आराम से नौकरी मिले। मतलब नोबडी वांट टू टेक पेन, वो आराम की नौकरी चाहते हैं और आराम से पैसा मिले, बस हो गया। तो जो हमारा जो
सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो भी उसके आता है आड़े में। तो मैं पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमारे मम्मी पापा को हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दिल्ली में जाके नौकरी करें, वहां जाके नौकरी करें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साइड से सर सारा एफर्ट हो रहा है, टेक्निकल जो स्किल डेवलपमेंट का सर सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो यूथ हैं, वो थोड़े से मतलब इंटरप्राइजिंग नहीं है। उसी में कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नीड में है, पैसे की जरूरत है, वो अपना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और मैंने आई एम सॉरी टू शेयर विथ यू, झारखंड गवर्नमेंट के पुलिस, मैं ऐसे ही किसी काम से गया था, तो डीएसपी का बॉडीगार्ड एक इंजीनियर है, वो उसके पास बीटेक की डिग्री है। तो वो फिर पता नहीं मेरे कहा कि सर हमको कहीं भी नौकरी खोल दीजिए। तो मैं इस हाउस को बोल रहा हूँ, हमें इतनी दया आई, मैंने उसके लिए नौकरी खोल दिया, लगा दिया। तो वो हमसे ऑब्लाइज हुआ, वो मेरा कोई नहीं लगता है, लेकिन हम बोले तुम बीटेक करके बॉडीगार्ड में हो, मतलब बड़ा अजीब लगा हमको। तो ये सब चीजें हैं सर। अभी अपने देश में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोगों में थोड़ा सा सुखी संपन्न होंगे, तो स्किल डेवलपमेंट का भी रिजल्ट पहुंचेगा। चाइना में क्या है सर, चाइना में एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो लोग हर चीज डिक्टेटोरियल मैनर में करते हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं स्किल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में। चाइना में यदि 100 केजी चावल का खर्चा है, तो चाइना अपने देश में 75% ही चावल उगा पाता है, जो 25% के लिए उसको बाहर डिपेंड होना पड़ता है। तो फूड ग्रेन में अब चाइना क्या कर रहा है, जितने उसके ऑर्चर्ड हैं, वहां सब्जी फल फूल बहुत होता है, सारे मतलब सब्जी के खेत, फल के बागान को उजाड़ रहा है, और वहां पर फोर्सफुली बोल रहा है तुम लोग गेहूं उगाओ, चावल उगाओ। तो ये अप्रोच अपने भारत देश में नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये मैं स्किल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को वही लोग यूज कर रहे हैं जो रियली में भूखे हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको मतलब मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, और जिसके माता पिता सुखी संपन्न है, दे लीस्ट बॉदर कि चलो पापा का तो अपना है, प्रॉपर्टी है, ये इसी में अपना ऐश कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, रादर गंदे काम कर रहे हैं, मतलब शराब, चरस, गांजा वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये भी चीजें अपने सोसाइटी में हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो एक अपने अलग टॉपिक है। तो ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं, अपने भारत देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए अब उसको सेटलाइज कर दिया गया है। पहले बहुत मिनिस्ट्री ऑफ पीएमओ में था, तो कुछ एचआर में था, तो कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा था। अब वो सेंट्रलाइज हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं, अपने देश में कार्यक्रम है, लेकिन जो नीडी हैं, जो यूथ हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमें सरकारी ही नौकरी मिले, आराम की नौकरी हो, प्राइवेट में कोई जाना नहीं चाहता है। प्राइवेट में वही जाता है जिसको हिम्मत होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू। हर्ष जी, एम आई राइट? अभय कृष्णन जी कुछ बोलना चाहते हैं? अभय कृष्णन जी, आपने हैंड रेज। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन सर। हाँ जी, दिस प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। और जितना भी अप्रिसिएशन किया जाए बहुत कम है।
इसका एक हाँ बहुत ही बिल्कुल। बेहतरीन टॉपिक मैंने देखा, जो फॉग वाला जो टॉपिक था, हाँ कहीं मैंने पढ़ा था बट उसकी मीनिंग समझ में नहीं आई थी। हाँ आज सर ने जो समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया सर। और जहाँ तक अभी सर बोल रहे थे कि इंडियन कल्चर की बात सर, ये बात सही है सर कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके जो जॉब है उनके घर के ऊपर ही मिल जाए, तो बहुत बेहतर है। अभी मैंने से यहाँ एक बंदे को जॉब लगाया, वो 8 साल से बेरोजगार बैठा है, एटी का इंजीनियर। और जो भी मैंने बोला कि यू हैव टू डू द 14 आवर्स ड्यूटी, आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, क्योंकि 30 किलोमीटर दूर जाना है। वो एग्रीड नहीं हुआ। अच्छा दिस वाज द कंडीशन की स्किल होने के बाद भी वो अपने स्किल को आगे निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कारण तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं सर समाज में और विकास में भी, बट चाइना इन सब चीजों में आगे है। उससे पता है कि स्किल अगर डेवलप है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो इंडिया में भी हो रहा है नहीं सर, बहुत बेहतरीन नहीं, उत्तर अब है प्रदेश सर, में चाइना है ना, चाइना सर डंडे के बल पर काम कराता है सर, हाँ रादर हाँ पीट सही पीट के। हाँ, सही बात वो है अपने उसमें। भारत में है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग डंका तो अपना ही बजने लगेगा, अपना ही डंका बजने लगेगा। ऐसे नहीं है सर, इंडिया में भी आप देखेंगे सर, जो गवर्नमेंट से जो फंड है एजुकेशनल फंड, आप देखेंगे कई कई डिफरेंट सोसाइटी को एजुकेशनल फंड्स दिया जाता है, कई डिफरेंट कम्युनिटी को भी एजुकेशन बढ़ाने के लिए डिफरेंट फंड्स दिए जाते हैं, बट उसका उपयोग नहीं होगा, वो सही मायने में योग नहीं होगा। तो पूछ दो कि प्रधानमंत्री कौन है तो बता नहीं पाए। दिस इज द मेन रीजन। तो वहां पे क्या है कि चाइना में डंके के चोट पे बोलता नौवीं तक पढ़नी है, जितनी भी पढ़ाई दैट्स द ओनली टेक्निकल, तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और इंडिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो है एजुकेशन को लेकर, जहाँ भी जिस कंट्री का भी एजुकेशन सही नहीं होगा ना, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। आज हम एक चीज सही करने जाएंगे तो हमारे सपोर्ट में 10 आदमी है, लेकिन अपोजिट में 100 आदमी खड़े हो जाएंगे। दिस इज द मेन बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी आप एक बात सही वैसे बोलिए, तुरंत आपके अपोजिट में 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। तो दिस इज द मेन माइंडसेट प्रॉब्लम, जो कि इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा किसी भी देश के विकास के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में तो ये सब चीज़ों का विकास होना चाहिए, एजुकेशन होने चाहिए, थोड़ा सा डंडा भी बदलना जरूरी है, जो मोदी साहब दे रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा है सर, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, आज का दिस वाज रियली ग्रेट नॉलेज सर, बहुत बहुत नॉलेज, बढ़िया अच्छा बहुत बहुत बढ़िया जानकारी। स्टैंडर्ड का चीज हुआ। उमेश जोशी साहब क्या बोलना चाहेंगे? हाँ यस जोशी यस साहब, हाँ वेरी गुड उमेश जोशी साहब। थैंक यू अमिताभ जी मिस्टर हर्षवर्धन gave a very informative and interesting talk now एक्सीलेंट एक्सीलेंट। my question to Harshvardhan ji is he ready to answer my question, Mr. Harshvardhan? Yes, sir. Yes, you are a very young and intellectual student, what I can say, so young, and I have a vast experience of coaching, training to a large number of bureaucrats, civil servants of India and abroad. So, my two questions are for you. Number one is how might demographic impact, such as aging population, impact China's future development. Again, I repeat, how might demographic impact such as aging population impact China's future development? This is first question. And second question मेरा बहुत आसान है, वो आपके पर्सनल उस पे है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं और बड़े ब्राइट स्टूडेंट भी देखे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से लेके साइंटिस्ट और सिविल सर्वेंट्स, बहुत यंग लड़के लड़कियां देखे। तो मैं दूसरा सवाल वो थोड़ा पर्सनल है, आप ये बताएं कि आपका जो सक्सेस है, आप इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट को क्लियरिटी देते हैं, इसका कारण क्या है? क्या आपके पेरेंट्स हैं, या बहुत अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, या बहुत अमीर पेरेंट्स हैं, या आपको बहुत अच्छे स्कूल में रखा गया है? तो ये दो पर्सनल, एक तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया और दूसरा वो चाइना से रिलेटेड है। ओवर टू हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी,
हेलो हाँ जी। हेलो हाँ सर थैंक यू सर I guess the first question was regarding the aging population of China, right? Yeah. यस सर यस इसका इसका एक तरीका है कि जो एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है वहां पे आप पैलिएटिव केयर भेजिए। पैलिएटिव केयर कहने का मतलब ये है, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जितने भी हमारे ओल्ड एजेस हैं उनकी केयर जब उनका अंतिम समय आता है ना, तो उनको वहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं, उसको घर पे शिफ्ट कर जाइए ताकि वहां आकर के वो अपने लोग के साथ रहे, बीच में साथ रहे। होगा क्या, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है सर। सेकेंडली, अगर आप इस चीज को ट्रीट करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो आपको वैसे जॉब्स क्रिएट करने होंगे दैट विल बी यूजफुल फॉर द एजिंग पॉपुलेशन। द एजिंग पॉपुलेशन कैन, सिंस दे हैव द एक्सपीरियंस, दे कैन पुट यू थ्रू द टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उन्होंने काफी 10-50 साल ग्राइंड करा हुआ है, वो आगे के पॉपुलेशन को टीच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डेमोग्राफी ओल्ड हो रही है, अभी इंडिया 30 साल की डेमोग्राफी डिविडेंड है, 30 साल की अभी से आगे जा करके। तो अगर हम उस एजिंग पॉपुलेशन को, नीचे के पॉपुलेशन को ट्रेन करने में लगा दें तो हमारा प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उमेश सर, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? Yeah. Thank you. And second question? Sir, second question is, बचपन से ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मजा आता था इस चीज को पढ़ने में। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, फादर इज द असिस्टेंट मैनेजर इन ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो उन्होंने कभी कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं करा मेरे ऊपर, जो मन में आया मैंने करा, और दे गेव अस द फ्री हैंड कि जो हम लोग नहीं कर पाए वो तुम करो। दैट वाज द केस। अरे वाह, Thank you. You are a और आप very कर भी रहे talented हो। boy, and हाँ, my good wishes are for you for a bright. Thank you. आज तो आपने एकदम रौनक ला दिया। सुब्रज्योति, यू वांट टू से? सुब्राज पर यू वांट टू से सरकार? ओके। और अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब से अमृत बानी सुनना चाहूंगा। और आज का कितना भी तारीफ करेंगे तो बहुत कम होगा, बट मतलब पता नहीं, ऐसे विद्वान हमारे देश में हैं और उनको जल्दी से जल्दी बड़ा स्थान मिलना चाहिए, और पता नहीं कब मिलेगा। ये मन, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को देख के मन में ये आता है कि मतलब क्यों नहीं इन लोगों को ऐसा स्थान दिया जाता है जहाँ पर ये अपने स्किल को दर्शा सकें और देश को, समाज को और राज्य को आगे बढ़ा सकें। हमारे खान साहब जी चंद्रेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम उम्र में इतना बढ़िया ज्ञान, अद्भुत चीज है। बहुत सुंदर। और जोशी जी का सेकंड प्रश्न बिल्कुल नेचुरल था कि कैसे आप इतना इस कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट कैसे हासिल कर लिए। चंद्रेश्वर खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने जो हर्षवर्धन जी को उनके संपूर्ण विकास के लिए विकसित है, लेकिन विकास की कोई आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। इसका न आदि है न अंत है, अपने आप में अनंत है, और वो अनंत की यात्रा में है। तो जो कोई अनंत की यात्रा में रहता है, उसके हाव भाव, उसकी अपनी दृष्टि, वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहता है। वो अपने बिल्कुल। परिश्रम में, अपने पैशन के साथ जुड़ा रहता है, जो सारे गुण भगवान ने इनको दिए हैं। चाइना का बड़ा अच्छा इन्होंने ये किया, और मैं बड़े मनोयोग से सुन रहा था। चाइना अपना दुश्मन है, और चाइना यदि किसी को अंदर से आदर करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, वो भारत की, वो एक्सप्रेस कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर लगी हुई। कुछ चीजों
के साथ मैं हर्षवर्धन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाइना ने एक पोजीशन में अपने लोगों को साफ साफ बता दिया। उसके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वो कर सकता है, सारे देश नहीं कर सकते हैं। कि चेयरमैन माओ सेतुंग ने आपके लिए ब्रेड यानी रोटी या चावल की व्यवस्था कर दी है, लेकिन उस ब्रेड में यदि आपको बटर चाहिए तो यू बेटर वर्क हार्ड। तो एक पूरा का पूरा जो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है अफीमची के देश ने जो उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ था, अभी भी मौका पाकर के डूब जाता है, लेकिन काम के लिए वो निकल गया। अपने काम को छोड़ करके वो कोई काम नहीं करेगा। और इस बीच में उसने लोगों से भी संबंध बनाना, जो लोग वहां जाते हैं, जो वहां इतना नेचुरल नहीं था, छल प्रपंच जो हम लोग देखते हैं, बहुत कम देश होगा जहाँ के मार्केट का नाम फेक मार्केट, तो इसमें भी वो जी रहा है। बीजिंग में फेक मार्केट, और जो पहले जो हम लोग जो तोल मोल करते थे, हम लोगों के माँ के समय में, दादी के समय में, कि कोई कुछ बेचने आया तो वो बोला 50 रुपया से इधर शुरू हो जाता था 5 रुपया। वैसा आदमी उस मार्केट में टिक जाएगा या उसको भी दिक्कत हो? तो आप ये देखेंगे कि उसने अपनी कमजोरियों को भी अंदर से समझा कि यहाँ हम कमजोर हैं, लेकिन उसको भय है, उसको भय है, डर है। और डर के अलावा जो चीजें लाई गई हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, किसी मीटिंग को एड्रेस करने जा रहे हैं, टी शर्ट में है, व्यवस्था पूरी है। क्योंकि हमने क्वेश्चन किया कि जो इनके लिए तो व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, बोला कि नहीं सर, व्यवस्था है। और उसके सारे प्रयोजन प्रकल्प अपने आप को प्रोजेक्ट करने में और लोगों को रोजगार देने में लगा हुआ। हर्ष जी ने बहुत अच्छा डाटा दिया कि आप ये देखेंगे कि एक बार मैं बीजिंग गया था, तो जहाँ मकई उपजाया जा रहा था, वो बहुत बड़ा एरिया को लिया गया था जहाँ ओलंपिक हुआ, उसमें हमने मकई को उपजते हुए भी, भुट्टा को भी देखा। और कुछ ही दिनों में, मतलब वो खाली नहीं पड़ा हुआ था, जब तक वहाँ कंस्ट्रक्शन के दूसरे काम नहीं हो रहे थे, वो खाली नहीं पड़ा हुआ था। उस भूभाग में एग्रीकल्चरल लैंड था। बाद में जब उसको डेवलप करना हुआ तो रातों रात काम करके उसने उसको डेवलप। तो ये, लेकिन जो नागेश जी भी जो बोल रहे थे कि विस्तारवादी नीति, घूस देने की प्रवृत्ति, अपना काम करवा लेना, उसमें वो कहाँ तक नीचे जा सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कुछ जो काम करने की प्रवृत्ति जबरदस्ती हो या इंसेंटिव दे करके हो, उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए इतना चाहिए जिसमें वो एक इज्जत की जिंदगी जी लेगा, उतना उसने व्यवस्था कर दिया। लेकिन अब उसमें कमी आ रही है। उधर से मैं नहीं गया हूँ। हर्षवर्धन जी को सारी चीजों को, सारे आयाम को, उसके जो प्लस हैं या दूसरी चीज जो है, कैसे उसने विकास किया है, इसको ला करके लोगों के सामने रखना, उसका एनालिसिस करना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं और आपने बड़े अच्छी तरीके से इन चीजों को कहा है। हम सभी
अभिभूत हैं आपके ज्ञान से, आपकी ऊर्जा से और आपकी नम्रता, दृढ़ता के साथ जो आपकी नम्रता, इन चीज़ों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको देख करके हमेशा ये कहने का मन होता है, आपका नाम वैसा है कि आप हर्षित हैं, हर्ष हैं। हम लोगों को जो आपने हर्षित किया, जिसके उद्गार इतने अच्छे निकले, सदा अपने आप वो एक बड़ी वस्तु है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे आप एजुकेट करते रहिए, ऐसे ही आप शोध करते रहिए, डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्रिंग इट टू द पीपल, एंड स्काई इज द लिमिट, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। सितारों के पार अब भारत उस गति के लिए, उस ऊंचाई के लिए तैयार है और आप जैसे लोगों के माध्यम से ये संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा माहौल सृजन किया है और अभी भी हम लोग कितने लोग सुब्रज्योति से, नागेश जी से, बैच से और जोशी साहब से, अमिताभ जी, कि इतने लोग डटे हुए हैं इस विषय पर। जो आपके लिए बोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहाँ विराम लगाना चाहिए ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आशीर्वाद एवं प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम लोग तो अपने ग्रुप से पूरा जी जान लगा देंगे, ये हमारे जो युवक जो इतने स्ट्रॉन्ग नॉलेज कीपर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। विकसित भारत से एक और हमारे पास आया कि आप हम लोगों को अपडेट सूचना देते रहें। आज का रिकॉर्डिंग भी आज हम भेज देंगे और बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हैं, इनको कदर मिलना चाहिए, इनको ऑनर मिलना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। कल हम लोग फायर सेफ्टी पर बात करेंगे। अभय कृष्णन साहब राजस्थान से इस पे शोध कर रहे हैं। खाना बनता है आग से बहुत सारी चीज़ें, जाड़ा में अपने शरीर को तापते हैं हम लोग आग से, और बहुत सारा काम करते हैं हम लोग आग से। लेकिन इसको किस तरह से सेफली इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान भी नहीं हो और जैसे आग का दुरुपयोग भी नहीं हो, इस संबंध पे अभय कृष्णन साहब बोलेंगे। कल आप लोग फिर आइएगा एक नया टॉपिक और एक नए विद्वान के साथ। ये भी एक बहुत यंग विद्वान है, अभय कृष्णन साहब को भी कल हम लोग सुनेंगे। और कल का संडे भी हम लोगों का बहुत ज्ञानवर्धक संडे होगा। नागेश जी तो इसमें जान डाल देते हैं और सारे विद्वान, जोशी जी, चंद्रशेखर खान साहब और सारे काल शेट्टी साहब और सब लोग, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए थे ये कनाडा से, वो साकेत बासु, सब कोई ये हमारे ये एम्स के डायरेक्टर जनरल, सब कोई हम लोग मिल करके हम अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, इसको रिकॉग्निशन दिलाएंगे जैसे चाइना अपने टैलेंट को रिकॉग्निशन दिलाता है। इसको करके देखते हैं कितना हम लोग सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सफल हो रहे हैं और सब लोगों में जागृति भी आ रही है। तो इसके साथ हम सभी को प्रणाम करते हैं। हर्ष जी को बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, उनके ज्ञान को। मैं बड़ा हूँ क्या हुआ, लेकिन उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें। और सबसे बड़ा चंद्रशेखर खान साहब का आशीर्वाद तो मिल ही गया। और कल फिर हम लोग मिलेंगे और एक नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए। कल फिर सबको ही आइएगा। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, यादगार मीटिंग आज।
Thank you, Harsh, and thanks to all. Thank you, sir.